Hello students, I welcome you all. Good morning to everyone, and my name is Vishnu Gupta and I am teaching biology here. On my YouTube channel, this is my initiative that so many students were feeling that biology is a subject which require routine. That's why I want to break this thinking. Clear? That's why I have started the YouTube channel. So please tell me that this my whatever initiative taken by me, it is it is fruitful for you or not. Are you learning the biology here? Please, how can you say that you are learning? Please press the like button. If you like the session, if you like the videos, please press the like button, because I think that you forget when you study on my YouTube channel and you just forget to press the like button. So please don't forget to press the like button. So let's start the session. Today is 23rd April. Clear? And we are on the third chapter of the biology in the class 12th, that is human reproduction. In the human reproduction we have studied a lot of topic. Clear? As usual, as daily, I just give you a power. I give you a backup. Backup means I just charge your body. How? With the help of this motivational quote. Let's see what is the motivational quote for you today. ज़िंदगी में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है। आई थिंक 99% लोगों के ऊपर ये अप्लीकेबल तो ज़रूर ही होगी। ज़िंदगी में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हैं। आपके घर में बहुत सारे आपके यंगर ब्रदर होंगे, यंगर सिस्टर्स होंगी, कज़िन्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स भी होते हैं कभी कभी। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को बहुत सारे एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग स्टडी को लेके, हार्ड वर्क को लेके, ठीक है। बट वही एडवाइस हम अपने ऊपर, वही सारी चीज़ें हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए ये मोटिवेशनल कोट है। जिस दिन अगर आप उन एडवाइसेस को, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, आपको ये भी पता है आपको क्या करना है और आपको ये भी पता है क्या आप कर रहे हैं। तो अगर आप बेटर है कि आप खुद अपने आप को एनालाइज कर लीजिए और उन चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो, देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द रिव्यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे इन द प्रीवियस सेक्शन, इन द प्रीवियस क्लासेस. We have discussed about the female reproductive system. I told you about the external genitalia, about the vagina, the different parts of the vagina. Before that we discussed about the different parts of the reproductive system, female reproductive system. In this diagram we discuss every part, I think so, and I told you the function of each and every part. Still, if you are having any doubt, then please write down in the comment box. Definitely I will clear those doubts. Then I just told you about the internal structure of the ovary. This is the internal structure of the ovary, and here I told you that it is divided into cross cortex and the medulla. In the medulla region I told you that only blood vessels, nerve cells, these cells are present. Clear? And in the cortex region, the main part is the cortex region where the follicle cells are developing. Clear? In the next topic we are going to study about the oogenesis and all. Then we will discuss the follicles, what are the follicles. Clear? After that we discuss about the different other parts, like as fallopian tube. In the fallopian tube I told you there are 3 parts. Then we discuss about the uterus. I told you that in the uterus the 3 layers are there: endometrium, myometrium and the perimetrium. Clear? And I told you the function of these 3 wall layer. Clear? Okay, after that we discuss about the cervix, then about the vaginal canal. Clear? And I told you what is known as birth canal. Birth canal किसको बोलते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस दैट इज नोन एज oogenesis, ठीक है। देखो, oogenesis इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। थोड़ा सा यहाँ पे ये टॉपिक बड़ा है और इसको बहुत अटेंशन, अपना जो कंसंट्रेशन होगा उसको बहुत पे करके यहाँ पे समझना, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली है, ठीक है। सी व्हाट इज oogenesis. From the word you can just write down the definition. The formation of ovum from the gamete mother cell is known as what? Oogenesis. Clear? This process comes under the gametogenesis. You know that there is a gametogenesis in the sexual reproduction. In the human male, we studied about the spermatogenesis, and there I told you in the male the spermatogenesis start at the puberty.
when the male attain puberty, clear, when the male attain puberty, then the spermatogenesis starts, clear. And that's why the male, this is the reason why the male can produce the sperm of at up to a very long period of time, up to a long period of his life, clear. But it does not happen in the case of the female. In the female, what happens in the female, like as whenever any girl child is there, girl child is in the mother's uterus, at the stage of fetus. When is it is at the stage of fetus, clear. When the girl in the fetal stage, then in the girl the ovary is there, because this part tell the person, matlab the baby is girl or boy. So in the girl the ovary is there. In the ovary the oogenesis starts, means before the birth the girl in the fetal stage, fetal life, in the ovary of the girl the oogenesis starts. oogenesis वहीं पे स्टार्ट हो जाता है. अमेजिंग लग रहा होगा कि मतलब गर्ल चाइल्ड अभी फीटल लाइफ में ही है और उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो गया. ठीक है. नाउ व्हेन द oogenesis स्टार्ट, जब oogenesis स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए जर्मिनल एपिथेलियम. वहाँ पे क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम है. ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम है. दैट जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म सो मेनी oogonia, क्लियर. सो मेनी oogonia क्या बन जाते हैं? oogonia बन जाते हैं. ठीक है. व्हेन द oogonia इज फॉर्म, जब oogonia बन जाता है, ठीक है, तो अ लॉट ऑफ oogonia आर फॉर्म. आफ्टर द बर्थ नो मोर oogonia इज एडेड, क्लियर. स्पर्मेटोगोनिया याद है आपको? इन द मेल यू स्टडीड अबाउट द स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया इज अ मेल जर्म सेल. ठीक है, मदर गैमीट मदर सेल थी वो. ठीक है. द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो द मियोटिक डिवीजन एंड डेट फॉर्म स्पर्म, वो वही स्पर्म बना लेती थी. सेम एज इन द केस ऑफ फीमेल. इन द केस ऑफ फीमेल द जर्मिनल एपिथेलियम एट द फीटल लाइफ, इट इज़ अबाउट द फीटल लाइफ, क्लियर. द जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म सो मेनी oogonia. ठीक है, oogonia बन जाता है, क्लियर है. अब देखो ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है? बिफोर द बर्थ. मैं आपको पहले एक थोड़ा सा आउटलाइन दे रहा हूँ पूरे प्रोसेस का. आगे मैंने सारी चीज़ें एकदम बहुत प्रॉपरली आपके लिए लिख रखी हैं. ठीक है. देखो ये जो प्रोसेस हम अभी पढ़ रहे हैं ये बिफोर द बर्थ हो रहा है, और उस लाइफ को हम क्या बुलाते हैं? फीटल लाइफ. ठीक है, जब वो जब गर्ल चाइल्ड अपनी मदर की बॉडी में होती है, अपने मदर के यूटेरस में होती है. ठीक है. तो हुआ क्या? सबसे पहले क्या फॉर्म हो गए? oogonia फॉर्म हो गए. अब बताओ oogonia की प्लॉइडी क्या होगी? 2n. बहुत सारी oogonia बन जाएंगे. ठीक है. देन oogonia, फिर क्या होगा? oogonia विल स्टार्ट माइटोसिस डिवीज़न. फिर क्या होने लगेगा? माइटोसिस डिवीज़न होगा. एंड oogonia विल फॉर्म प्राइमरी oocyte. ठीक है. What will be the ploidy of primary oocyte? Again 2n, because which type of cell division is taking place? Mitosis, clear. So many oogonia are formed. From the oogonia what form? Primary oocyte is formed. Primary oocyte बन जाता है. ठीक है. Then primary on surround, मतलब जो primary oocyte है, suppose this is primary oocyte, ये primary oocyte है. ठीक है, primary oocyte सेल है, और मतलब अराउंड इट, इसके ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाते हैं. ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाते हैं. ये ग्रेनुलोसा सेल्स कहाँ पे आ रहा है? ओवरी में, क्योंकि दिस होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द ओवरी. ठीक है. और उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाते हैं. ठीक है. किसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए? प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या आ गए? ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए. ठीक है. नाउ दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल. इसी को हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल. देखो फॉलिकल सेल्स होती हैं, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं. आपने एडवर्टीजमेंट में सुना होगा कि फॉलिकल्स गिर रहे हैं, फॉलिकल्स स्ट्रांग हो रहे हैं. तो फॉलिकल सेल्स होती हैं जो किसी पार्ट को डेवलप करती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इस पार्ट को हम क्या बुला रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल बुला रहे हैं. ठीक है. अब देखो जो प्राइमरी क्लियर हो गया. सबसे पहले oogonia बना. oogonia जर्मिनल एपिथेलियम से फॉर्म हो गया.
ठीक है, बहुत सारे oogonia बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द oogonia प्राइमरी oocyte बन गया, विच बाई विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। देन अबव द प्राइमरी oocyte क्या आ गए, ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए। ग्रेनुलोसा सेल्स जब आ गए तो उस स्टेज को हम क्या बुला रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल बुला रहे हैं। क्लियर है। अब देखो जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल है, और इस स्टेज को हम क्या बुला रहे हैं, मतलब ये किस स्टेज में है, प्राइमरी oocyte। नाउ इट विल स्टार्ट मियोसिस। अब ये क्या स्टार्ट करेगा, मियोसिस। और तुम्हें पता है मियोसिस टेक प्लेस इन 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो इट विल स्टार्ट मियोसिस 1, क्लियर, बट इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट मियोसिस 1। ये मियोसिस 1 को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इट विल अरेस्टेड। अरेस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ लेना। ऐसा मतलब ये नहीं कि उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। अरेस्ट का मतलब ये थोड़ा ना कि उसको छोड़ेंगे ही नहीं। अरेस्ट मतलब उसको हमने क्या कर लिया, मतलब ये स्टेज क्या हो गई, अरेस्टेड हो गई, बाद में ये फिर से फ्री होगी, मतलब बाद में ये फिर से फंक्शन करेगी। तो व्हेन द प्राइमरी oocyte स्टार्ट मियोसिस 1 इट इज़ अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। मतलब जब ये सेल मियोसिस 1 स्टार्ट करती है तो प्रोफेज 1 आते आते मतलब प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाती है, सेल डिवीज़न रुक जाता है। ये रेस्टिंग स्टेज होती है, इसकी फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज होती है, ठीक है। क्लियर है। आपको याद होगा 11th में आपने मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 पढ़ा हुआ है। प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस पढ़ी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटीन स्टेज में ये जाके प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। oogonia बना, ठीक है, oogonia से क्या बन गया, प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए, तो इसको हम क्या बुला रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल बुला रहे हैं। देन इट विल स्टार्ट मियोसिस 1। अभी फीटल लाइफ में ही है वो, ठीक है, अभी गर्ल चाइल्ड की बर्थ नहीं हुई है, ठीक है, फीटल लाइफ में ही है, बिफोर द बर्थ है, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ बट अरेस्ट हो गया। किस स्टेज में अरेस्ट हो गया, प्रोफेज 1 में। इन योर एनसीईआरटी ओनली प्रोफेज 1 इज रिटन। तो whenever you are going to write down answer in the board exam you will write down prophase 1, but for your competitive exam diplotin is important। क्लियर है, ठीक है। तो ये रेस्टिंग स्टेज आ गई, फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज आ गई। समझ में आया, मतलब अभी गर्ल चाइल्ड की बर्थ नहीं हुई, बिफोर द बर्थ, बिफोर बर्थ जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके पास ओवरी है, दैट हैज़ ओवरी इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। ओवरी में क्या बन गए, अभी तक क्या बन गए, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और प्राइमरी oocyte किस स्टेज में रुका हुआ है, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, ठीक है। और इसी प्राइमरी oocyte को और हम क्या बुलाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। क्यों फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल बुला रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाते हैं। वो जो सेल्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और नरिश भी करते हैं, ये उसका फंक्शन होता है, ठीक है। और इसी स्टेज को हम प्राइमरी oocyte भी बुलाते हैं, और क्या बुलाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल भी बुलाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि बिफोर बर्थ क्या हुआ, ठीक है। अब देखो, अब गर्ल चाइल्ड की बर्थ होगी, जब बर्थ होगी उसकी, ठीक है, व्हेन द गर्ल चाइल्ड विल टेक बर्थ, व्हेन द गर्ल चाइल्ड टेक बर्थ, जब उसकी बर्थ होगी, देन उसकी ओवरी में, मतलब इन हर ईच ओवरी, हर एक ओवरी में देयर विल बी द लिमिटेड नंबर ऑफ द प्राइमरी oocyte। उसके हर एक ओवरी में लगभग 60,000 अप्रॉक्सीमेटली 60,000 प्राइमरी oocytes होते हैं इन ईच ओवरी में। क्लियर हो गया। व्हेन द गर्ल चाइल्ड विल टेक बर्थ, अब देखो जब भी उसकी बर्थ हो जाएगी तो उसके बाद एनी प्राइमरी oocyte, एनी oogonia आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस whatever numbers, whatever primary oocytes they are having in the each ovary, only they will develop into the ovum, वही ओवम में डेवलप होंगे। यही एक रीज़न है कि जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है दैट लास्ट ओनली फॉर द 36 to 37 ईयर। हाउ, कैसे पॉसिबल है, गर्ल चाइल्ड अटेन द प्यूबरिटी सपोज एट द 14 एज, ठीक है, 14 ईयर ऑफ द एज, क्लियर, एंड at the 50 or 55 year, up to 50 or 55 year, the ovum formation, the development of ovum stops, ठीक है, with the menstrual cycle,
with the menstrual cycle the formation of ovum, the development of ovum stop. तो अगर आप कैलकुलेट करो 55 माइनस 14 तो इट कम्स आई थिंक 31. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम 36-37 ईयर तक मान सकते हैं. ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि जो भी फीमेल होती है उनकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, मतलब उनकी बॉडी में, उनकी ओवरी में जो ओवा का प्रोडक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्या थे, प्राइमरी oocyte थे. क्लियर है. तो ये बर्थ, जैसे ही जब भी बर्थ होगी गर्ल चाइल्ड की, तो ऑलरेडी द गर्ल चाइल्ड विल हैव द प्राइमरी oocyte, द ओवम इन द प्राइमरी oocyte स्टेज इन ईच ओवरी. हर एक ओवरी में उसके पास क्या होंगे, प्राइमरी oocyte पहले से ही होंगे. मतलब इसका मतलब है oogenesis बिफोर द बर्थ, बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो गया था. क्लियर है. ठीक है, तो ये तो हो गया बिफोर द बर्थ. अब देखो जब बर्थ होगी, बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक, बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक, ठीक है, जो भी प्राइमरी oocytes होंगे, ठीक है, बहुत सारे डेवलप होंगे, बहुत सारे डीजनरेट भी हो जाएंगे. ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक बहुत सारे जो प्राइमरी oocyte बने हुए हैं उनका डीजनरेशन भी होता है ना, होगा ना. सेल्स हैं तो सेल्स हो सकता है कुछ सेल्स उसमें से डीजनरेट हो जाए, कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ सेल्स इनएक्टिव हो जाए. ठीक है, बट प्यूबरिटी तक पहुँचते पहुँचते उसकी ओवरी में 60,000 अप्रॉक्सीमेटली 60,000 प्राइमरी oocyte होंगे. ठीक है, प्यूबरिटी तक पहुँचते पहुँचते उसकी ओवरी में, इन ओवरी हाउ मेनी प्राइमरी oocytes आर देयर, 60,000 अप्रॉक्सीमेटली 60,000, मोर देन 60,000 भी हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 60,000. क्लियर है. तो बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट जो ओवरी में जो प्राइमरी oocytes हैं, ठीक है, वो बचे हैं अभी. क्लियर है. अब व्हेन द गर्ल चाइल्ड विल अटेन प्यूबरिटी, जब वो प्यूबरिटी में आएगी, ठीक है, प्यूबरिटी, अब गर्ल चाइल्ड प्यूबरिटी में आ गई. अब गर्ल चाइल्ड में प्यूबरिटी में उसकी ओवरी में क्या था, प्राइमरी फॉलिकल्स थे. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स थे, ये इसके ऊपर ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स थे, और इसी स्टेज को हम क्या बुला रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल. नाउ ऑन दिस स्टेज मोर ग्रेनुलोसा सेल्स विल सराउंड, इसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएंगे. ठीक है, और ग्रेनुलोसा सेल्स इसके ऊपर डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल. क्लियर हो गया. प्यूबरिटी जैसे, जब भी प्यूबरिटी स्टार्ट होगी तो हर एक प्राइमरी oocyte में, मतलब जो प्राइमरी oocyte है, ये नहीं कि सारे प्राइमरी oocyte एक साथ ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं, उनमें में से कुछ प्राइमरी oocyte, एक या दो, ठीक है, 3, ऐसा भी हो सकता है. क्लियर. तो वो किस में जाएंगे, डेवलपमेंट स्टेज में जाएंगे, उनका डेवलपमेंट होगा. ठीक है, क्योंकि डिवीज़न तो उनका तो फॉर्मेशन तो पहले से ही हो चुका है, बस उनको अब डेवलप करना है, मतलब आगे की स्टेजेस को कंप्लीट करना है. तो पहले तो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज थी. ठीक है, अब वो किस में चेंज हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स उसके ऊपर कम थे, और उसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए, तो उसी स्टेज को हम क्या बुला रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, लेकिन अभी भी ये किस स्टेज में है, अभी भी ये प्राइमरी oocyte स्टेज में है. याद रखना, अभी भी ये किस स्टेज में है, प्राइमरी oocyte स्टेज में है, प्राइमरी oocyte. ठीक है, क्लियर है. तो प्राइमरी oocyte स्टेज में ही प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल भी आ गए. ठीक है, ये क्लियर हो गया. सेकेंडरी फॉलिकल बन गए. अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल जब बन गए, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, अंदर प्राइमरी oocyte है. ठीक है, और इसके ऊपर जो ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए हैं, उसी की वजह से ये क्या बन गया है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है. ठीक है, इस स्टेज को हम क्या बुला रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बुला रहे हैं. ठीक है, अब और ग्रेनुलोसा सेल्स डेवलप होंगे. ठीक है, और ग्रेनुलोसा सेल्स का डेवलपमेंट होगा, और जब ग्रेनुलोसा सेल्स डेवलप होंगे, ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो डेवलप होंगे, जो प्राइमरी oocyte के ऊपर जो ग्रेनुलोसा सेल्स डेवलप होंगे, वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे. ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई. फिर से बता रहा हूँ, ये कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी फॉलिकल है.
सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जब और ग्रेनुलोसा सेल्स डेवलप होंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो भाई इतनी सारी सेल्स होगी तो लेयर भी बना लेंगी, वो सेल्स मिलके क्या बना लेंगी, लेयर बना लेंगी। आउटर लेयर, इसको आउटर थिका बोलते हैं, थिका मतलब क्या होता है, लेयर, ठीक है, और ये इनर थिका बन गई। ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, ये जो है ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये है क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब देख सकते हो प्राइमरी oocyte के ऊपर 2 लेयर बन गई, और ये प्राइमरी oocyte के बाहर ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये फ्लूइड यहाँ पे भर जाता है, ये यहाँ पे फ्लूइड, मैं F लिख दे रहा हूँ, F, ठीक है, ये यहाँ पे फ्लूइड भर जा रहा है, फ्लूइड भर गया। ये फ्लूइड आया कहाँ से, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो फ्लूइड सेक्रीट करती हैं, ठीक है, और वो फ्लूइड जो है किसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, प्राइमरी oocyte के ऊपर फ्लूइड बन जाता है। और इसी फ्लूइड कैविटी को, क्योंकि ये कैविटी बन गई ना, देखो ये कैविटी है, उसमें प्राइमरी oocyte सिचुएटेड है, इसी कैविटी को हम क्या बुलाते हैं, एंट्रम। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन मैं स्टेज बाय स्टेज समझा रहा हूँ, इसलिए आपको अभी जब आपको आगे मैं ले चलूँगा ना फ्लो चार्ट की तरफ और डायग्राम की तरफ, तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस पर अगर उस पर डायरेक्ट चले जाते तो आपको क्लियर ना हो पाता, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस को ब्रेक कर दिया है। आपको पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आपका माइंड मेकअप हो जाए। फिर जब आप अभी प्रोसेस देखोगे, पढ़ोगे, डायग्राम देखोगे, तो आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है, सारी स्टेजेस आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें और ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए, और ग्रेनुलोसा सेल्स जब आ गए तो क्या हुआ, प्राइमरी oocyte के ऊपर बहुत सारे मतलब फ्लूइड भर गया, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ फ्लूइड आ गया। उस फ्लूइड को हम क्या बुला रहे हैं, एंट्रम, मतलब उस फ्लूइड कैविटी को हम क्या बुला रहे हैं, एंट्रम बुला रहे हैं। उसके ऊपर 2 थिका बन गई है, एक आउटर थिका और एक इनर थिका, 2 टाइप की थिका मतलब मेम्ब्रेन बन गई है, और इसी स्टेज को अब बुलाते हैं टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल ये था, ये तो सेकेंडरी फॉलिकल था, ठीक है, और ये कौन सी स्टेज हो गई जिसपे एंट्रम बन गया, ये है टर्सरी फॉलिकल बन गई, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से टर्सरी फॉलिकल जैसे ही बनेगी, तुरंत अभी तक प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में रुका हुआ था, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte जो है वो दैट विल कंप्लीट द मियोसिस 1, अब वो मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा, मतलब जैसे ही टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एज द मियोसिस 1 विल कंप्लीट, प्राइमरी oocyte में जो अरेस्टेड था अभी तक सेल डिवीज़न में, वो कंप्लीट कर लेगा, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है, जब जैसे कोई भी मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो गए तो 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है, एक तो बन जाएगी सेकेंडरी oocyte, अब देखो दोनों सेल जो है एक दूसरे से अनइक्वल है, मतलब ये लार्ज है, ये लार्ज सेल है और ये स्मॉल है। इसके पहले जो इसकी प्री कर्सर सेल थी वो कौन सी थी, प्राइमरी oocyte थी, ठीक है। देखो oocyte और फॉलिकल अलग अलग चीज़ें हैं, अगर उन दोनों को अलग अलग लेके चलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दोनों को मिक्स कर दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। oocyte जो है वो सेल्स हैं, मतलब मेन जो सेल है उसके ऊपर जो और सेल्स आ रही है ग्रेनुलोसा सेल्स, वही उसको फॉलिकल में चेंज कर रही हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, वो उसकी ग्रोथ स्टेज है, वो उसकी डेवलपमेंट स्टेज है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte सबसे पहले था, प्राइमरी oocyte से क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये जो छोटा मतलब जो छोटी सेल है, ठीक है, इसके पास साइटोप्लाज्म कम होता है, सारा मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म किसके पास चला जाता है, सेकेंडरी oocyte के पास चला जाता है। और ये जो स्मॉल सेल है इसी को बोलते हैं पोलर बॉडी, ठीक है। तो व्हेन द प्राइमरी oocyte कंप्लीट इट्स मियोसिस 1, इट डेवलप, इट फॉर्म 2 सेल, 2 सेल बन जाती है। तो मैं पता है मियोसिस 1 का जो रिजल्ट है वो 2 सेल्स होती हैं, 1 सेल, दोनों जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है, 1 सेल इज़ लार्ज, वन अनदर सेल इज़ स्मॉल, द लार्ज वन इज़ नोन एज सेकेंडरी oocyte, लार्ज को हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी oocyte बुलाते हैं, और जो स्मॉल होती है उसको बुलाते हैं पोलर बॉडी। पोलर बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन डी जनरेट हो जाती है। मोस्टली यही देखा गया है कि जो प्राइमरी पोलर बॉडी होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है वो डी जनरेट हो जाती है, क्लियर है, समझ में आ गया। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, नाउ इट विल एंटर इन द मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो किस में एंटर करेगी, मियोसिस सेकेंड में एंटर करेगी, ठीक है, और इसके ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाएंगे,
ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी में देखो, ये देखो, अब यहाँ देखो, अब ये और क्लियर होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी फॉलिकल पढ़ा था। देखो यहाँ ध्यान से, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल बुलाओ चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल बुलाओ, ठीक है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल पहले से ही ओवरी में प्रेजेंट थे, ठीक है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट थे। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। देख रहे हो ना, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, क्या डिफरेंस है। और उसके बीच में जो सेल दिख रही है, इसके बीच में देखो जो छोटी सी सेल दिख रही है, वही क्या है, प्राइमरी oocyte है। मैं पूरा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, प्राइमरी oocyte है। क्लियर है। उसके बाद देखो फिर सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बन गया, मतलब धीरे धीरे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये टर्सरी फॉलिकल बन गया। और देखो यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई, इसी को बुलाते हैं क्या, हम एंट्रम बुलाते हैं। और जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, प्राइमरी oocyte जो होती है, दैट कंप्लीट इट्स मियोसिस 1, और वो मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है तो देख रहे हो तुम, ये और ज़्यादा बड़ी हो गई, इस तरह से देखो, ये और ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। और अब इस सेल को क्या बुलाएंगे हम, सेकेंडरी oocyte। यहाँ तक तो ये प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte था, लेकिन अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, ठीक है। और देखो और ये लार्ज हो गया, मतलब और सेल्स डेवलप हो गए, और इस तरह से फॉलिकल अब जाके मैच्योर हो गया, मतलब अब जाके फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक कि सेकेंडरी oocyte बना। अब देखो सेकेंडरी oocyte विल एंटर इन द मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो होगा, बट इट विल अरेस्टेड अगेन, फिर से मियोसिस सेकेंड अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मेटाफेज सेकेंड में जाके रुक जाएगा, मतलब मियोसिस कंप्लीट नहीं होगा। और देखो बिना मियोसिस कंप्लीट हुए क्या हो रहा है, रिलीज़ हो जा रहा है, मतलब ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, यही रिलीज़ हो गया, इसी को हम ओवम बुलाते हैं। अभी भी इस ओवम में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसको और थोड़े दूसरे ढंग से भी पढ़ लेते हैं, मैं आपको हर एक एंगल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ओवरी के क्रॉस सेक्शन में भी मैंने वो चीज़ें दिखा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, तो मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें थिका का क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था, ये देखो oocyte है, बीच में क्या है, oocyte है, ठीक है। जो चारों तरफ ये जो सेल्स दिख रही हैं, यही हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। यही ग्रेनुलोसा सेल्स बाद में oocyte के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती हैं, ऐसे लेयर बना लेती हैं। अब देखो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसको क्या बुला रहे हैं हम, एंट्रम बुला रहे हैं। देखो थिका इंटरना है, और यहाँ पे कहीं थिका एक्सटर्ना भी होगी, मतलब बाहर आउटर लेयर जो होगी वो एक्सटर्ना होगी, और जो इनर लेयर है वो क्या है, इंटरना है। तो ये जो स्टेज है वो क्या दिखा रहा है कि कैसे oocyte के ऊपर फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, ठीक है। और जब भी सेकेंडरी oocyte, देखो यहाँ पे जब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होगा, देखो, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ना कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बना, मियोसिस 1 जब कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, ठीक है। अब देखो सपोज जैसे ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके ऊपर ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसको हम क्या बुलाते हैं, एंट्रम बुलाते हैं। और ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, इसी के ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती हैं, मतलब बहुत ढेर सारी ग्रेनुलोसा सेल्स आ जाती हैं, ठीक है। उन्हीं में से कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती हैं वो सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte इसी के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती हैं, 2 लेयर बन जाती है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर 2 लेयर बन जाती है। एक को बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है, और जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब एक डायग्राम से मैं और तुम्हें समझा दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये क्या है, यहाँ प्राइमरी oocyte नहीं होगा, ये सेकेंडरी होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड जान लो, सेकेंडरी है ये, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है। अब देखो सेकेंडरी oocyte को क्या क्या दिख रहा है तुम्हें, एक एंट्रम दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। देखो ये एक लेयर दिख रही है ना, ज़ोना पेलुसिडा, ज़ोना पेलुसिडा देखो सेकेंडरी oocyte के ऊपर है, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है, ज़ोना पेलुसिडा, ये पहली लेयर होती है। और उसके ऊपर भी कौन सी लेयर है, कोरोना रेडिएटा,
तो ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। जब जो सेकेंडरी oocyte है, मतलब इसी को हम ओवम भी बुलाते हैं, जब ये ओवम यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था ना ओवरी का डायग्राम, उसमें ओवम रिलीज़ हो जा रहा था, तो जब ओवम रिलीज़ हो जाएगा तो ये जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा उसके ऊपर रहेंगे, ठीक है। और ये जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा कहाँ से आई, ग्रेनुलोसा सेल्स ने ही इन दोनों लेयर को बना लिया, मतलब कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स सेकेंडरी oocyte के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बन जाती हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और इसी ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, टर्सरी फॉलिकल के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्रेफियन मतलब मैच्योर, यहाँ पे ग्रेफियन का मतलब है मैच्योर फॉलिकल, मतलब अब फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे, यही लास्ट स्टेज होती है फॉलिकल की, ठीक है। तो फॉलिकल की कितनी स्टेजेस आई, प्राइमरी फॉलिकल पहले से ही बन गया था ओवरी में बिफोर द बर्थ, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, बर्थ के बाद प्यूबर्टी जब आ गई तो सेकेंडरी फॉलिकल बना, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल बना। टर्सरी फॉलिकल कैसे पहचानोगे, एंट्रम बन जाता है, उसमें फ्लूइड भर जाता है। टर्सरी फॉलिकल से ये क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। तो फॉलिकल में 4 स्टेजेस आ रही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ये लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ओवम में कौन कौन सी स्टेज आ रही है, मतलब जो फीमेल गमीट है, सबसे पहले क्या था, प्राइमरी, और फिर क्या बना, सेकेंडरी, बस सबसे पहले प्राइमरी था और अब क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी है, क्लियर है। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया, और उसमें क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है। अब इस ओवरी के डायग्राम में देखो, देखो सेकेंडरी oocyte जो है, जिसको हम ओवम भी बुलाते हैं, वो देखो रिलीज़ हो जा रहा है, ये देखो यहाँ पे देखो, ये मैच्योर फॉलिकल अभी मैंने दिखाया ना, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल देखो रप्चर्ड हो गया, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो गया, और जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो गया। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बुलाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ओव्यूलेशन बुलाते हैं। अब देखो ओवरी में बच क्या गया, ओवरी में बच गया रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, मतलब जो रप्चर्ड पार्ट है वो ओवरी में ही रह जाता है, वो बाहर की तरफ नहीं आता, वो एक पार्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, और दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज़ येलो इन कलर, ये येलो कलर में होता है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का सेक्रीशन करता है, बढ़ा देता है, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ गया, तो इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया। तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया कि क्या क्या हो रहा है। अब देखो, अब जो भी चीज़ें मैंने समझाई है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक, मतलब सिस्टमेटिक इन द सेंस नोट्स के फॉर्म में उसको समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज़ oogenesis, इस स्लाइड में मैंने बता रखा है oogenesis क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गमीट विच इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो लिखा है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जब गर्ल चाइल्ड फीटस लाइफ में थी तभी ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में इस नोट्स को डिवाइड कर दिया है। देखो सबसे पहले प्रोसेस बिफोर द बर्थ, बर्थ के पहले, मतलब अभी गर्ल चाइल्ड की बर्थ नहीं हुई तब क्या क्या होगा, गैमीट मदर सेल्स oogonia फॉर्म हो गया, बताया ना आपको, डायग्राम बना हुआ है क्या, एकदम अच्छे से समझाया कि oogonia बन जाता है। oogonia फिर और कोई, मतलब एक बार अगर oogonia जितने भी बन गए, अगर उतने ही oogonia रहते हैं, बाद में कोई oogonia ऐड नहीं होता है। मतलब अगर उसकी बर्थ हो गई तो कोई भी oogonia उसमें, अगर मान लो कोई oogonia नहीं बना, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा कि सर अगर कोई oogonia नहीं बना, तो कोई oogonia नहीं बना तो कोई भी oogonia ऐड ही नहीं होगा, इसका मतलब है वो फीमेल जो है बाद में कभी भी गर्ल चाइल्ड को, मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती अपने ओवम से, उसके लिए दूसरे का ओवम लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद देखो oogonia क्या, अंडरगो माइटोटिक डिवीज़न, वो माइटोसिस डिवीज़न करती है और क्या बना लेती है, प्राइमरी oocytes बना लेती है, ठीक है। दीज सेल्स अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, आपको मैंने बताया था प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट होता है, लेकिन वो अरेस्टेड हो जाता है, मतलब रुक जाता है प्रोफेज़ 1 में। प्रोफेज़ 1 की कौन सी स्टेज में रुकता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अनटिल प्यूबरिटी, प्यूबरिटी तक ये उसी स्टेज में रुके रहते हैं, मतलब जितने भी oogonia थे उन सब प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाते हैं। वो प्राइमरी oocyte जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न करने के बाद वो क्या होते हैं, वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, बहुत सबसे लंबा रेस्टिंग स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइमरी oocyte के ऊपर, यहाँ देखो लिख रखा है प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या क्या आ गए हैं, प्राइमरी oocyte के ऊपर सराउंडेड बाई ग्रेनुलोसा सेल्स, और उसी स्टेज को हम क्या बुलाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बुलाते हैं। तो ये सब कब हुआ, बिफोर द बर्थ, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये बिफोर द बर्थ हो रहा है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबरिटी।
बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक क्या हो रहा है, मतलब गर्ल चाइल्ड की बर्थ हो गई, प्यूबरिटी तक क्या होगा, बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक फॉलिकल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, केवल डीजनरेशन होगा। बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स बने हैं जो किस स्टेज में हैं, प्राइमरी oocyte स्टेज में हैं, प्राइमरी oocyte स्टेज में हैं, वो डीजनरेट होते चले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे डीजनरेट हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, ठीक है। सी अब देखो एट प्यूबरिटी, जब प्यूबरिटी में आ गई गर्ल चाइल्ड तो क्या हो रहा है, फॉलिकल्स जो थे ना, ठीक है, वो डीजनरेट हो गए, लेकिन अभी भी प्यूबरिटी तक पहुँचते पहुँचते 60,000 से लेके 80,000, मैंने आपको बताया था ना अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो अभी भी ओवरी में बचे हुए हैं। अब देखो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल विल सराउंडेड बाय मोर ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, और क्योंकि इतने सारे ग्रेनुलोसा सेल्स बन गए इसलिए उसके ऊपर एक थिका बन जाएगी, मतलब लेयर बन जाएगी, ठीक है, न्यू थिका बन जाएगी, और इसी स्टेज को हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बुलाते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद देखो क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल फिर टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। सेकेंडरी से टर्सरी जब बनेगी तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी जिसको हम क्या बुलाते हैं, एंट्रम बुलाते हैं, ठीक है, और दो थिका बन जाती है, एक इनर थिका और एक आउटर थिका, दो थिका बन जाती है, ठीक है। इस स्टेज में जो टर्सरी फॉलिकल है वो साइज़ में ग्रो होता है, और पहला डिवीज़न, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो अभी तक अरेस्टेड था, जो रुका हुआ था, वो कंप्लीट हो जाता है। और अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि वो अनइक्वल होता है, ठीक है, अलग, मतलब दोनों साइज़ जो दो सेल्स बनती हैं वो दोनों अलग अलग साइज़ की होती हैं, एक लार्ज होती है जिसको हम सेकेंडरी oocyte बुलाते हैं, और जो स्मॉल होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, पोलर बॉडी बनाते हैं, ठीक है। पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte फिर से मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करती है, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम में भी समझा दिया था, ठीक है। एंट्रम बन गया, आउटर थिका बन गई, और जोना और कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। उसके बाद सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगा, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल पूरी तरह से ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रेनुलोसा सेल्स क्लोज हैं, oocyte के क्लोज हैं एकदम, वो दो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे। पहली लेयर क्या होगी, सबसे जो क्लोज होगी वो होगी जोना पेलिसुडा, और उसके बाहर जो लेयर होगी उसको बुलाएंगे हम कोरोना रेडिएटा। ये वाला कोरोना नहीं है जो आजकल चल रहा है वायरसेस, ये कोरोना नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो दो प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, ये देखो डायग्राम में आपको मैंने बता दिया था। और ये प्राइमरी oocyte नहीं है, सेकेंडरी है, इसको सही कर लेना, सेकेंडरी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, और इसी सेकेंडरी oocyte को हम ओवम बुलाते हैं। सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस स्टार्ट हुआ है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होगा, जब उसमें स्पर्म एंटर करेगा तब उसका मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होगा, याद रखना। और तब एक और पोलर बॉडी बनती है जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बुलाते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रेफियन फिर क्या हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो गया। मैंने आपको टीएस ऑफ ओवरी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी में बताया ना कि ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है। जो सेकेंडरी oocyte है जिसको हम ओवम भी बुलाते हैं, वो बिना मियोटिक डिवीज़न को कंप्लीट किए हुए रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte जो होता है वो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाता है, मतलब उसी में रुका रहता है, ठीक है। और यही सेकेंड रेस्टिंग स्टेज है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया oogenesis के बारे में। तो oogenesis मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आप इसको एक बार जैसे क्लियर नहीं होगा, पहली बार में नहीं क्लियर होगा तो दो बार सुनना, उसके बाद फ्लो चार्ट की हेल्प से देखना, ठीक है। मैंने हर एक तरह से आपको इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर दिया है। और फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस टॉपिक को फिर से आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इसमें थोड़ा सा क्लियर कम होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत ईजी है कि सबसे पहले oogonia बने बिफोर द बर्थ। oogonia जो है माइटोटिक डिवीज़न करके प्राइमरी oocyte, अपने दिमाग में रखो कि प्राइमरी oocyte बन गए। प्राइमरी oocyte के ऊपर बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए। प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 स्टार्ट तो किया लेकिन प्रोफेज 1 में रुक गया। फिर प्राइमरी oocyte के ऊपर जो ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए थे उसी को हम क्या बुलाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बुलाते हैं। बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द डीजनरेशन ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल, सो मेनी प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बचे रह जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 से लेके 80,000। जब गर्ल चाइल्ड प्यूबरिटी अटेन करती है तो जो प्राइमरी फॉलिकल थे उन्हीं का डेवलपमेंट होता है, वो सेकेंडरी में चेंज होते हैं, थर्ड टर्शरी में चेंज हो जाते हैं। और जैसे ही टर्शरी स्टेज आती है तुरंत ही प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है।
जैसे मियोसिस कंप्लीट करता है, सेकेंडरी oocyte बन जाती है और पोलर बॉडी बन जाती है। पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है। सेकेंडरी oocyte के ऊपर और ग्रेनुलोसा सेल्स आके उसको मैच्योर फॉलिकल का फॉर्म दे देते हैं, और ऐसी कंडीशन में फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है। भाई मैच्योर हो गया तो रप्चर्ड हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा तो क्या रिलीज़ हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम बुलाते हैं। और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो हो गया था लेकिन वो रुक गया। क्लियर है? तो ये मैंने पूरी समरी बता दी। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप दूसरे को भी ये टॉपिक पढ़ा सकते हो। अब देखो हार्मोनल कंट्रोल, इसी प्रोसेस का हाइपोथैलेमस तुम्हें पता है ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस हमेशा रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज़ करती है, एक का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन आपने मेल के केस में भी पढ़ रखे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल। आपको याद है ना, फॉलिकल सेल्स, उन फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने आपको बताया था ना, जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है, जो रप्चर्ड फॉलिकल हैं वो किस में चेंज हो जा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम पे कौन स्टिमुलेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, यही हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ कर रहा है, फॉलिकल सेल्स रिलीज़ कर रही हैं, और प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज़ कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, फिर एक और मैंने यहाँ लगा रखा है, देखो ये बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में है, ठीक है, पहले से ही, ये बिफोर द बर्थ, ये मैं लाइन खींच दिया मैंने, ये बिफोर द बर्थ है, बिफोर बर्थ। ठीक है, अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी जैसी प्यूबरिटी अटेन होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH को सेक्रीट करती है। FSH फॉलिकल सेल्स पे जाएगा और फॉलिकल सेल्स को देखो मैच्योर कर रहा है। फॉलिकल सेल्स क्या हो जा रही है, मैच्योर हो जा रही हैं, ये फॉलिकल सेल्स मैच्योर हो गई। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ज़्यादा सेक्रीशन की ही वजह से ओवम रिलीज़ हो जाता है, मतलब जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो जाता है, और क्या बच जाता है, फॉलिकल्स बच जाते हैं। ये देखो जो रप्चर्ड फॉलिकल बचेंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएंगे, और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सेक्रीट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद जब ओव्यूलेशन हुआ, देखो ओवम, अगर ओवम या तो फर्टिलाइज होगा, अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर वहाँ पे स्पर्म है तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ये एम्बेडेड हो जाएगा किस में, यूटेरस में, और क्या काज हो जाएगी, प्रेगनेंसी। ऐसी कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज़ होगा जिसको हम HCG बोलते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ऐसी कंडीशन में जो कॉर्पस ल्यूटियम है अब वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब वो अब वो डिजनरेट नहीं होगा। समझ में आया? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है, मतलब जो जाइगोट है, वो यूटरस की वॉल में एम्बेडेड हो गया, उसमें मतलब इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी काज हो गई। प्रेगनेंसी अगर काज हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम परमानेंटली प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखो, अगर ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम, ओवम सब क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होकर रिलीज़ हो जाएगा, और उसी को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन हो गया तो फिर से एक नई साइकिल, फिर से फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो अब फॉलिकल का मैच्योरेशन रुक जाएगा। ठीक है, लगभग 9 मंथ या 1 साल के लिए जो फॉलिकल्स का मैच्योरेशन है वो रुक जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बस जैसे ही ये सारी चीज़ें डीजनरेट होकर बाहर निकलेंगी, ठीक है, तुरंत एक नई साइकिल, फॉलिकल्स के मैच्योर होने की एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, वैसे तो ऐसा मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना क्लियर हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको फिर से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है वैसे oogenesis का, एवरीथिंग, एक एक चीज़ क्लियर कर दी कि कोई भी अब आपको डाउट ना हो। अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ 1-2 बार देखिए वीडियो को,
जो मैंने डायग्राम बना के अपने हाथ से मैन्युअली आपको समझाया था उसको एक बार समझो कि मैंने क्या क्या बताया था, फिर उसको मैंने कोरिलेट कर दिया अपने थ्योरेटिकल पॉइंट से, डायग्राम से, ठीक है, और हार्मोनल भी बता दिया कि हार्मोन का कैसे रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, हार्ड लर्निंग करिए, ठीक है, और अपडेट करते रहिए, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करते रहिए, एंड प्लीज़ स्पेयर मोर टाइम फॉर योर स्टडी, अपनी स्टडी को लेके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेयर करिए, ठीक है। और फिर से वही मोटिवेशन कोट पे हम आ जाते हैं और उसी के साथ एंड करते हैं कि आप दूसरे को